being co-hosted by the Health Ministry, the World Health Organization Southeast Asia Regional Office and the Stop TB partnership there. Well, that summit taking place, going to be beginning in just a bit from now here in the national capital, and leaders from across the globe have converged in the national capital for an end tuberculosis summit that's beginning today to review the ongoing efforts and also accelerating action to reach the 2030 end the TB goal. The summit being hosted by the Union Ministry of Health along with the World Health Organization and the Stop TB partnership. Prime Minister Modi has just reached there at the there at the venue of this summit, the summit on the Delhi and tuberculosis taking place in the national capital today. The summit in fact will shortly be inaugurated by the Prime Minister and will also in fact see addresses by the World Health Organization Director General as well. Also going to be speaking are the Union Health Minister JP Nadda and also the chair of the Stop TB partnership. In fact, also health ministers of a number of countries including Indonesia, Bangladesh, South Africa, Nigeria, Mozambique, Zimbabwe are all participating in the summit today. And let's also tell you more about this summit, the Delhi End Tuberculosis Summit. Well, this is building on the Delhi call to action that has been adopted by the member countries of the World Health Organization Southeast Asia region in March last year, and also the World Health Organization Global Ministerial Conference Ending Tuberculosis in the Sustainable Development Era. And in fact, the summit is also setting the stage for the September 2018 United Nations high-level meeting on tuberculosis, where for the first time tuberculosis would be discussed in the United Nations General Assembly at the heads of state level. So a very important summit taking place today in the national capital. Prime Minister Modi is going to be shortly inaugurating the Delhi End Tuberculosis Summit in the national capital, which is being co-hosted by the Health Ministry, the World Health Organization Southeast Asia Regional Office and the Stop TB partnership. Leaders from across the globe have converged there in the national capital for this summit, the End Tuberculosis Summit that is beginning today. And the summit is very important because it is going to be reviewing the ongoing efforts and also accelerating action to reach the 2030 End Tuberculosis goal. Health ministers of a lot of countries, of a host of countries including Indonesia, Bangladesh, South Africa, Nigeria, Mozambique, Zimbabwe, Kazakhstan, Peru and Brazil are all in fact participating in the summit today. In fact, let's also tell you the target that has been set by India. In fact, it's set a 2025 target, is matching it up with the increased funding as well as the efforts to proactively detect and treat the patients of tuberculosis as well. So a very important summit that's going to be in fact inaugurated by Prime Minister Modi in just a bit from now. The campaign will take the activities of the National Strategic Plan for Tuberculosis Elimination forward in a mission mode. In fact, that plan itself, the NSP, is backed by a funding of over 12,000 crore rupees over the next 3 years to ensure that every patient of tuberculosis has the access to quality diagnosis, treatment and support as well. The plan is an important one as it also adopts a multi-pronged approach which aims to detect all the patients of tuberculosis with an emphasis on reaching the patients seeking care from private providers and undiagnosed TB in the high-risk population. We're seeing that packed venue there, the packed auditorium, because just in a short while from now, that very important summit, the Delhi End Tuberculosis Summit, is going to be inaugurated by Prime Minister Modi there in the national capital. The summit there being co-hosted by the Health Ministry, the WHO Southeast Asia Regional Office and the Stop TB partnership.
And in fact, apart from that, Prime Minister Modi is also going to be launching the Tuberculosis Free India campaign. And leaders from across the globe, across the world, have all converged there in the national capital. In fact, there we are seeing those visuals of Prime Minister Modi just arrived there inside the auditorium. Namaskar, good morning and swagatam. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, distinguished dignitaries on the stage, Shri Jagat Prakash Nadda, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Professor Isaac Adewale, Honorable Minister of Health, Nigeria, Dr. Neela Juwita F. Molek, Honorable Health Minister of Indonesia, Honorable Minister of State of Health and Family Welfare, Government of India, Srimati Anupriya Patel, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Honorable Director General of the World Health Organization, Mr. Peter Sands, Global Fund Executive Director, Dr. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO, CIERO, Dr. Luchicha Dithiu, Stop TB Partnership, she's Executive Director, Excellencies, our respected international and national delegates, respected members of the press and media, ladies and gentlemen. It is my privilege in requesting Shri J.P. Nadda, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, to kindly give his welcome speech on this occasion. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार में मेरे साथ मंत्री मैडम अनुप्रिया पटेल जी, डॉक्टर आइजैक फोलोर्नोसो, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, डॉक्टर नीला, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया, डॉक्टर टेड्रोस, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और WHO के डायरेक्टर जनरल, जिनके साथ हम सबको काम करने का मौका मिला है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WHO, मिस्टर पीटर सैंड्स, ED ऑफ ग्लोबल फंड, डॉक्टर लुचिका, ED ऑफ स्टॉप TB प्रोग्राम, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य के जगत से जुड़े हुए हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ साथ विशेष करके हमारे फुट सोल्जर्स जो TB के बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है, उनके साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, एक्टिविस्ट और हेल्थ फ्रेटर्निटी के सभी सदस्यगण, मीडिया के मेरे मित्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये हम सब के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि जहां इंडिया दिल्ली एंड TB समिट कर रहा है, उसका श्री गणेश करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत और अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं उनके साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य के विभिन्न देशों के मंत्री आए हैं, जिन्होंने अपना कमिटमेंट NTB प्रोग्राम को दिया है, उनका भी मैं हार्दिक भारत की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स का, WHO,
और हमारे जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं और विशेष करके हमारे फुट सोल्जर्स जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस की लड़ाई ग्राउंड जीरो यानी जमीनी स्तर पर लड़ करके उसमें सफलता हासिल की है, उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम जानते हैं कि इस दिल्ली एंड टीबी समिट में 3 कार्यक्रमों का समावेश है। एक तो भारत का दिल्ली एंड समिट का कार्यक्रम, उसी के साथ साथ WHO का मिनिस्ट्रियल मीटिंग और इसी के साथ साथ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का बोर्ड मीटिंग। ये तीनों का समावेश भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हमारे WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन और इनके साथ साथ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सब ने मिलकर के अगले 2 दिनों में टीबी को हम किस तरीके से इस अपने देश में, अपने रीजन में और दुनिया से किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स पर हम सब चर्चा करने वाले हैं। और हम सब का सामूहिक कमिटमेंट है कि दुनिया से ट्यूबरक्लोसिस समाप्त हो, एलिमिनेट हो, उसके लिए हम कृत संकल्प हैं। आज जब इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको उद्घाटन भाषण सुनने को मिलेगा और जो उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की हामी भरी है, यह इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और उन्होंने पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से, जो एक समय में हम कह सकते हैं कि उस पर उतनी प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन आपके प्रधानमंत्रित्व काल में यह सेंटर स्टेज का विषय बना है, मुख्य धारा का विषय बना है। ऐसी शख्सियत का आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह मैं कहने के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य को सेंटर स्टेज में लाने के लिए पिछले 4 वर्षों में आपका अथक प्रयास है। लंबे समय से हम एक पुरानी स्वास्थ्य नीति पर चर्चा करते हुए कार्य कर रहे थे, लेकिन आपके नेतृत्व में 2017 में एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल सोच के साथ सभी लोगों को जोड़कर, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर एक साथ चर्चा करते हुए नई स्वास्थ्य नीति 2017 में आपके नेतृत्व में भारत में लागू हुई है और उसने मूलभूत परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम लंबे समय तक क्यूरेटिव हेल्थ केयर की बात करते थे और हमारा जोर टर्शरी हेल्थ केयर पर हुआ करता था, लेकिन आपने प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रोमोटिव हेल्थ केयर, पैलिएटिव हेल्थ केयर और हम रोग से निरोग की ओर चलें, रोग हो ही नहीं, निरोगी रहें, इस पर आपने जोर दिया। और ये स्वास्थ्य नीति में जो जोड़ा गया, यह एक जिसको कहते हैं कि एक शिफ्ट ऑफ फोकस, उसको आपने स्वास्थ्य नीति के माध्यम माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Question number 241 M. Sri
माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं कि पूरे देश में जो कृषि के लिए बहुत जरूरत है उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा राज्य है वहां पर अभी इनकी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बटे हैं उनकी संख्या बहुत कम है और उसका दूसरा चरण चालू है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको जो दूसरे चरण चल रहा है उसमें सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब तक सभी किसानों को बांट दिए जाएंगे। चरण में भी सॉइल हेल्थ नमूना लेने का काम अब तेजी से हो रहा है। Stands adjourned to meet again at 12 o'clock. सीधा प्रसारण आप लोकसभा से देख रहे थे, जहां पर फिलहाल लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली के उस टीबी एंड दिल्ली शिखर सम्मेलन में, जहां स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र का खुलना और जेनरिक मेडिसिन का दिया जाना, अमृत दीनदयाल के माध्यम से ब्रांडेड मेडिसिन को 60 to 90% रिडक्शन रेट पर MRP के वो भी दिया जाना, स्टेंट्स का रिडक्शन, स्टेंट्स के रेट का रिडक्शन, हमारे नीज के रिप्लेसमेंट के में जो लगता है उसका रिडक्शन, यह अपने आप में बताता है कि भारत सरकार आपके नेतृत्व में आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए और मेडिसिन और इक्विपमेंट्स को एक्सेसिबल करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जहां तक ट्यूबरक्लोसिस का सवाल है, हम जानते हैं कि आपने बहुत ही दुनिया को एक दिशा देने की दृष्टि से जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 में एलिमिनेट होने की बात कही गई तो आपने कहा कि भारत 2025 में मुक्त होना चाहिए, उसके लिए हर तरीके की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ा हौसले का कदम, और स्वास्थ्य विभाग उस काम को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। पूरी ताकत के साथ हम पूरा कर रहे हैं। हमने 2017 में डेली रेजिमेंट शुरू कर दिया, प्रतिदिन दवा देने की व्यवस्था, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मुफ्त निक्षय के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने का प्रयास किया। न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो आपकी सोच थी जिसको आपने पूरा किया, उसके माध्यम से हम लोगों ने जमीनी स्तर पर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को मेडिसिन टिल एंड एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टिल एंड, इसको पूरा किया। बेराक्युलिन को हम लोगों ने उपलब्ध कराया। इस तरीके की स्ट्रैटेजी को लेकर के और माइक्रो प्लानिंग की, आपको जान करके हर्ष भी होगा और अचंभा भी होगा। भारत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो 300 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन इन टर्म्स में हम बातचीत करते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि जब हमने एक्टिव सर्वे फॉर ट्यूबरक्लोसिस भी किया तो वो एक्टिव सर्वे ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में हम लोगों ने 5.5 करोड़ इतने लोगों को एक्टिव सर्वे इन 378 डिस्ट्रिक्ट्स किया and 27,000 new patients were added of tuberculosis who never knew that they were suffering from tuberculosis. This is how we are working. You wanted, Honorable Prime Minister wanted that we should go for a very active screening और उसके लिए हमको सारे methodologies adopt करनी चाहिए। हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में जो कोई व्यवस्था नहीं थी वो 1100 से ज्यादा CBNAT machines को लगाया है। 1000 से ज्यादा मशीन्स लग गई हैं और वो ऑपरेटिव हैं, जिसके माध्यम से प्रैक्टिकली एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू द सब डिविजनल लेवल वेयर वी आर एबल टू डिटेक्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि 2 दिन के अंदर हम सारी स्ट्रैटेजीज को वर्कआउट करेंगे। मैं पुनः जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी,
उनका हम सब की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आपके मार्गदर्शन पर हम पूरा चल करके स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों के साथ मिल करके आपकी जो दिशा है उसको हम पूरा करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारे आए हुए मेहमानों का और हमारे सभी फुट सोल्जर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और 2 दिन के डेलिब्रेशंस बहुत ही कामयाब होंगे, इस आशा के साथ आप सबको धन्यवाद कहता हूं। Thank you very much, our Honorable Union Health Minister, Shri J.P. Nadda, for your most wonderful welcome speech. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, it is now my privilege in requesting Dr. Nila Juwita F. Molek, Honorable Health Minister from Indonesia, to kindly give a speech on this occasion. Dr. Nila is here representing the Southeast Asia region. His Excellency Prime Minister of India, Excellencies Health Minister from WHO member states, Director General WHO, and Regional Director of the WHO Southeast Asia region, distinguished delegates, and ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be here together with distinguished ministers, colleagues, and friends who are committed to end TB epidemic. Let me express my highest appreciation to the Government of India and the WHO Southeast Asia Regional Office for organizing this very important high-level leadership meeting on ending TB. Excellencies, ladies and gentlemen, last year in the New Delhi meeting and the first WHO Global Ministerial Conference in Moscow, Indonesia reiterated its firm commitment to eliminate TB as defined by the End TB Strategy and Development Goals, and to work closely in ending TB with other countries in the region and the global. We are proud to share that strong leadership and political commitment from the President of the Republic of Indonesia carries out multi-sectoral approach for ending TB in Indonesia. The government set TB control as one of its highest priority program in the National Development 2015-2019, which included TB program in the 12 indicators of the national development to be monitored directly by the presidents. Our commitment for achieving the elimination of tuberculosis are ensured by the government of Indonesia policy to strengthen self-reliance and sustainability in TB control, which include, first, universal access to high-quality TB care in all sectors by carrying out national health insurance and social protection scheme. Second, empowering body to set TB control as one on its highest priority program in the national development and commit to full funding for ending TB with the implementation of exit strategy of external aids for TB control. Third, conducting family health and patient-centered community approaches. Fourth, establishing district-based public-private mixed strategy. Fifth, practicing active case finding and partnership. And six, engaging innovative policies and research in TB control. These are keys to improve the access and outreach of the previously unreached TB cases. Additionally, legal framework, which included declaring TB as notifiable diseases, has been strengthened to support TB control in achieving the elimination of tuberculosis. Excellencies, ladies and gentlemen, I conclude by reiterating Indonesia's strong commitment to achieve the elimination of tuberculosis by 2030 as part of the National Development Agenda, as well as the highest commitments of countries in the Southeast Asia region in supporting the full implementation of New Delhi Call for Action to end TB in the Southeast Asia region by 2030. It is my hope that this high-level leadership meeting can be a platform of network building
and experience sharing between countries in the region and globally, which strengthen respective national capacity for successful elimination of TB. Thank you. Thank you very much indeed, Honorable Health Minister from Indonesia, Dr. Nila Zhueta F. Molek. Thank you very much, ma'am, for a most wonderful address. Ladies and gentlemen, it is now my privilege and an honor in requesting Professor Isaac Adewale, Honorable Minister of Health from Nigeria, to kindly give his speech, please. Your Excellency, the Prime Minister of India, Your Excellency, the Ministers of Health, Members of Parliament, Director General, WHO, Executive Director, Global Fund, Executive Director, Stop TB, heads of agencies, TB survivors in the audience, distinguished ladies and gentlemen. It is my honor and pleasure to address this important and impressive gathering on behalf of the Stop TB Partnership and as a minister in one of the highest TB burden countries in Africa. Thank you, Your Excellency, for hosting us and hosting this important gathering of committed individuals who would like to put an end to TB. I bring greetings from President Muhammadu Buhari, the government and people of Nigeria, and the board of the Stop TB Partnership, including Aaron Moseledi, his chair, the Minister of South Africa, who is a passionate advocate for ending TB. Unfortunately, Your Excellency, he could not be with us here due to an unprecedented and serious outbreak of listeria in his country. As we know, the first ever high-level meeting on TB is scheduled to hold in September 2018 during the UN General Assembly. It is an historic opportunity to focus the attention of the world on the elimination of one of the deadliest diseases in history. Your Excellency, the good news is that TB is curable. TB is central to the achievement of universal coverage. A country cannot achieve its maximum potential and social development without addressing TB. It is a matter of prosperity for many countries. The response to TB needs to be mainstreamed into the development agenda for many countries. We, as leaders, resolve to seize this opportunity to make bold commitments and take a resolve to see the end of TB on a fast track. Actions to follow the commitment will need the health ministries, all the ministries, private sector, civil society and communities, and a wide range of stakeholders. It will be very important, Your Excellency, for heads of state to actively participate in this meeting to end the epidemic in my lifetime. In our countries, esteemed ministers of Africa will do our utmost to ensure our heads of state participate in the meeting. This meeting in New Delhi is an important event in the run-up to the UN high-level meeting in New York by bringing concrete commitments. In my country, Nigeria, we are facing a big burden of TB, and we are committed to accelerating efforts to find and treat everyone with TB. The leadership of His Excellency, the Prime Minister of India, and his vision to end TB by 2025 in India, ahead of the Sustainable Development Goal target, is inspiring and has motivated all of us to work harder to ensure that we progress faster towards ending TB. Your Excellency, Prime Minister Modi, we look forward to your leadership at the UN high-level meeting. We also plead with His Excellency to encourage other heads of government, particularly in the Commonwealth, to attend this important meeting. The recent progress in India on TB is remarkable, with new and ambitious funded plan. This meeting demonstrates the commitment of Indian leaders and people working towards
ending TB by 2025. We look forward to learning from India in many areas of the fight against TB, including the achievements in TB research. In this context, Your Excellency, Dr. Lushika Ditu, the Executive Director of Stop TB Partnership, has asked me to announce the winner of the 2017 prestigious Cochrane Prize in TB. It is my honor to inform Your Excellency and this august gathering that the Indian Council of Medical Research will be presented the award this evening at a private dinner. Thank you. Thank you very much indeed, Honorable Health Minister from Nigeria, Honorable Professor Isaac Adewale, for your wonderful speech. I now request a TB survivor to kindly share his experiences with us. I request Shri Siddeshwar Kumar Singh to kindly come up on stage and share his experiences, please. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से जुड़े हुए सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न देशों, राज्यों, जिलों एवं संगठनों से आए हुए सम्मानित अतिथिगण एवं टीबी पे विजय प्राप्त कर चुके मेरे साथियों का मैं सुदेश्वर कुमार सिंह हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस अवसर पे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे यहां अपने अनुभवों को साझा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आशा करता हूं कि टीबी बीमारी पे मेरी जीत मेरे अनुभव, एक छोटी सी कहानी सुनने के पश्चात आप सभी लोग भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने में अपना योगदान देंगे। मैं बिहार राज्य के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हूं। बात कुछ वर्ष पूर्व की है, जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। उसी दौरान मेरी तबीयत खराब हुई और मैं स्वयं ही प्राइवेट दवाखाना से दवाइयां लेता रहा, लेकिन मेरे स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने लगा। तब मैं शहर के एक बड़े डॉक्टर के परामर्श उपरांत मैंने एक्सरे एवं अन्य जांच कराई। जांच के क्रम में डॉक्टर द्वारा मुझे फेफड़े में पानी और टीबी रोग होने की पुष्टि की गई। टीबी रोग की बीमारी सुनकर मेरे परिवार के लोग बहुत ही घबरा गए। वो मेरे पत्नी और बच्चे को लेकर चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसी जानकारी थी कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है और मेरा मरना तय है। इन सब चीजों को सुनकर मेरे सगे संबंधी ने मुझसे नाता तोड़ लिया और दूरी बनाने लगे। वो मेरे लिए अलग कमरा, वस्त्र, भोजन आदि का अलग करने का दबाव डालने लगे, ताकि ये किसी घर के किसी और सदस्य को ना हो जाए। वो इतना डर गए थे कि मेरे जीवन बीमा के बारे में पूछने लगे कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे का सहारा बनेगा। इन सब बातों को लेके मेरा आत्मबल और साहस कमजोर पड़ गया, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि कुछ मित्रों के माध्यम से सरकार द्वारा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी हुई और मैं मुफ्त सरकारी इलाज का लाभ मिला। नियमित परामर्श, जांच एवं दवाइयों का सेवन करते हुए मैंने उपचार पूरा किया और टीबी पे जीत प्राप्त की। इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि यह एक लाइलाज बीमारी बिल्कुल नहीं है। नियमित दवाइयों के सेवन एवं सही जानकारी से यह टीबी पूर्णतः ठीक हो सकती है, लेकिन लोगों में टीबी पे जागरूकता की कमी और फैली हुई भ्रांतियों की वजह से टीबी रोग से प्रभावित व्यक्तियों को मानसिक, पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर एमडीआर टीबी मरीजों को, जिनका इलाज
24 से 27 महीने चलता है। टीबी बीमारी से ठीक होने के उपरांत मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में टीबी जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूं। अब मैं टीबी चैंपियन के रूप में इस रोग पे विजय प्राप्त कर चुके अन्य टीबी चैंपियनों के साथ मिलकर टीबी मुक्त बिहार नेटवर्क के माध्यम से टीबी बीमारी से प्रभावित लोगों को मानसिक सहयोग, सामाजिक भेदभाव एवं भ्रांतियों को दूर करना तथा सरकार के आरएनटीसीपी कार्यक्रम से जोड़ने का अनवरत प्रयास कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे जैसे लोग जो टीबी पे जीत पा चुके हैं उनको भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में इस तरह जोड़ा जाए कि वे ग्राम पंचायत स्तर तक जाकर काम कर सकें। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर सरकारी एवं निजी स्तर पे एक समान रूप से मुफ्त आधुनिक जांच एवं संपूर्ण उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही टीबी मरीजों के लिए सीधे उनके खातों में 500 रुपये प्रति माह पोषण सहयोग राशि का आर्थिक सहयोग एक सराहनीय कदम है। अतः आशा करता हूं कि देश विदेश से आए हुए सभी प्रतिनिधियों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टीबी मुक्त भारत 2025 के मिशन को पूरा करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Shri Siddeshwar Kumar Singh, for your wonderful speech. Thank you very much indeed, and sharing your experiences. Ladies and gentlemen, it is now my privilege and indeed an honor in requesting Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of World Health Organization, to kindly give a speech on this occasion. Thank you very much, MC. Namaste. Namaskar. Your Excellency Prime Minister Modi, Excellencies, Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the Government of India for hosting us. There is nowhere more significant to hold this meeting than here in India. The Government of India has committed to achieving the Sustainable Development Goal targets to end TB by 2025, 5 years ahead of the global target, with a bold, ambitious and courageous plan. India has provided financial and nutritional support to patients and has fully funded the plan, currently a fourfold increase compared to the last 5 years. And that's why I say this is the right place to have this event. I would also like to personally thank His Excellency Prime Minister Modi for giving TB his personal as well as his political commitment. This is needed for the challenging task to implement the plan. India is taking enormous and bold steps to win the war against TB. This will be a critical contribution to win the war globally. And now we are witnessing an increased and unprecedented political commitment to end TB globally. We saw it in Moscow in November when President Putin committed to engage globally to end TB. And we will see it again in September when heads of states will gather at the UN high-level meeting in New York this year. Today, I'm proud to be here to launch End TB Camp, a joint initiative between WHO and Stop TB Partnership. CAMP stands for Commitments
accountable actions to accelerate access and measurable progress. WHO and the Stop TB Partnership are calling for leaders and partners from all sectors to make bold and specific commitments as India is making today. We need increased investment in TB research with specific initiatives to fund research and development for new diagnostics, drugs, and vaccines. Together, we aim to reach 40 million people with quality TB treatment by 2023. Our vision is that no one with TB will miss out on the care they need. WHO will stand by India and by every country that decides TB has no place in its future. Thank you. Dhahanavad. TB Haragadesh Jitga. TB will lose and the country will win. Thank you so much. Namaste again. Thank you. Thank you very much indeed. Hardik dhanyavad karti hu aapko. That was Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General, World Health Organization, kindly giving us a wonderful, dynamic speech. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for, an auspicious occasion, the formal launch of TB Free India campaign. And for that, I have privilege in requesting Honorable Union Health Minister, Shri J.P. Nadda, to kindly request Honorable Prime Minister to kindly launch the TB Free India campaign. India's commitment to eliminate TB in India, by 2025. More than 400,000 patients die every year due to TB, causing pain and suffering to millions. This cannot be allowed to continue. The Prime Minister appealed that the country should aspire to end TB by 2025, 5 years ahead of Sustainable Development Goals. भारत को हमें टीबी से मुक्ति दिलानी है. टीबी का उपचार आसानी से हो सकता है. The nation has heard his call, and a national strategic plan with multiple strategies was formulated last year to provide quality care to about 2.8 million TB patients annually across India. The budget is more than doubled, and activities initiated in full earnest. To reduce disease transmission time, nationwide active case-finding campaigns have been launched. Mobile TB vans have screened 55 million high-risk people and 26,000 additional new patients put on treatment so far. More than 1,000 CBNAT laboratories and 74 reference labs have been set up in the last 2 years, remarkably reducing the time taken to diagnose TB. Universal free drug susceptibility test with CBNAT has been initiated this year. This will ensure patients receive appropriate regimens for treating both drug-sensitive and drug-resistant TB upfront at the time of diagnosis. Better and patient-friendly fixed-dose daily regimens were introduced for adults and children across the country last year. Newer drugs like Delaminate are being introduced. Bedequilin is now being expanded across India and is served through 147 DRTB centers. These drugs will benefit an estimated 20,000 eligible drug-resistant TB patients henceforth in the country. To improve notification and complete treatment of all TB patients, engagement with private sector is also being enhanced through several innovative approaches, like incentives to private providers for TB notification, support for free drugs and diagnostics, including CBNAT test for patients in private sector. All chemists mandated to maintain Schedule H1 register to capture details of anti-TB drugs sold in private sector. My government has therefore decided to allocate rupees 600 crores to provide nutritional support to all TB patients at a rate of rupees 500 per month for the duration of their treatment. Each and every TB patient notified by both public and private sector will now receive an incentive of rupees 500 every month for nutritional support through direct benefit transfer to an Aadhaar-linked bank account. To improve case notification, treatment compliance and outcomes, financial incentive, which was limited to tribal patients, is being expanded to all TB patients. Breakthrough information technology leveraged through Nikshay to revolutionize patient-centric TB care. All
TB patients will now receive professional counseling through call centers. Under the Prime Minister's Make in India initiative, TB diagnostics developed in the country now have global potential. TB India Research Consortium is driving innovation for vaccines, drug discoveries, diagnostics, and implementation research. The program has also initiated a drive for improving patient care and community engagement. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हम 2025 में ही निजात पा जाएंगे ट्यूबरकुलोसिस से। With a strong political will to succeed and adopting right approaches, country is marching towards a TB-free India. We are committed to TB-free panchayats, TB-free districts, TB-free states, TB-free nation, and TB-free world. After that wonderful video on the launch of the TB-Free India campaign that the Prime Minister has just launched, I have the honor and the privilege in requesting our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly give his inaugural address on this occasion. भारत के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, नाइजीरिया के स्वास्थ्य मंत्री, इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और विश्व भर से आए हुए अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, एंड टीबी समिट यहां सम्मिलित होने के लिए आप सभी भारत आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस टीबी को अब से करीब 25 वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया था। तब से लेकर के अलग अलग देशों में टीबी की रोकथाम के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए गए हैं। निश्चित तौर पर हम सभी ने एक काफी लंबा रास्ता तय किया है। टीबी की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि टीबी को रोकने में हम अब भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जब कोई कार्य 10 साल 20 साल से किया जा रहा है और उसके नतीजे वैसे नहीं आते हैं जैसी की अपेक्षा की गई थी, तो हमें अपनी अप्रोच बदलकर देखना अनिवार्य हो जाता है। जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, जिस तरह की योजनाओं को लागू किया गया है, जमीन पर जिन तरह से काम हो रहा है, उसे बहुत व्यापक तरीके से एनालाइज करने की समय की मांग है। जब आप गंभीरता से पुरानी प्रक्रियाओं को एनालाइज करते हैं, तभी नई अप्रोच का रास्ता खुलता है। और मुझे खुशी है कि इसी सोच के साथ भारत की हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मिलकर एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों को आज हम
एक मंच पर ले आए हैं। इसी साल सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक से पहले की तैयारी के तौर पर आज का ये आयोजन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अहम कदम है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली एंड टीबी समिट टीबी को धरती से हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक लैंडमार्क इवेंट के रूप में जाना जाएगा। साथियों, अभी हाल ही में इसी दिशा में भारत की एक और पहल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले वर्ष दिल्ली कॉल फॉर एक्शन टू एंड टीबी इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन बाय 2030 के प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया था। इस प्रस्ताव के बाद शुरू हुई प्रक्रियाएं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टीबी को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत सकारात्मक पहल के तौर पर सामने आ रही है। टीबी जिस तरह लोगों के जीवन पर, समाज के स्वास्थ्य पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के भविष्य पर असर डालती है, उसे देखते हुए अब तय समय के भीतर टीबी से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। भारत में तो वैसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है, गरीब उस मुसीबत में फंसता है। और इसलिए टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम सीधे सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों, दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन मैं आज इस मंच से एक घोषणा कर रहा हूं कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है। हमारी सरकार एक नई अप्रोच, नई रणनीति के साथ भारत से टीबी समाप्त करने के मिशन से जुट गई है। भारत सरकार द्वारा जो नए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, उसकी एक झलक आपने अभी यहां प्रस्तुत किए गए प्रेजेंटेशन में भी देखी है। टीबी खत्म करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उत्तरदायी हैं, उन्हें हमारी सरकार एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। फ्रेंड्स, भारत में टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था, वह पूरी तरह ऑपरेशनल है। सरकार द्वारा टीबी से जुड़ी योजनाओं पर बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में ही हमारी सरकार ने इस बीमारी के मरीजों को पौष्टिक सहायता देने के लिए अतिरिक्त $100 मिलियन प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया है। मरीजों को
न्यूट्रिशनल सपोर्ट खरीदने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जा रही है। टीबी के मरीजों की सही पहचान हो, एक्टिव केसेस के बारे में समय पर पता चले, जो दवाइयां दी जा रही हैं वो प्रभावी है भी या नहीं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो नहीं है, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यापक स्तर पर सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और उसका काम किया जा रहा है। ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के साथ सरकारी योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज कर रही है। इसके अलावा हमारा जोर टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन से ज्यादा और उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी हमारा बल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आधार बनाते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और उससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, डिसीज सर्वेलेंस के लिए, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशन देने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हमने डिजिटल एक्सरे रीडिंग के लिए स्वदेशी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन भी विकसित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस मशीन को ट्रू नेट नाम दिया गया है। ये मशीन मेक इन इंडिया की मुहिम को भी बल देती है। टीबी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे वैक्सीन, बेहतर दवाइयां, डायग्नोस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी को और मजबूत करने के लिए इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्शियम, उसकी भी हमने स्थापना की है। टीबी को भारत से मिटाने के लिए राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करते हुए इस मिशन में राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलने के लिए मैंने खुद देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। यहां इस आयोजन में राज्यों की तरफ से आए मंत्रीगण और संबंधित पदाधिकारियों का इतनी बड़ी राज्यों में बड़ी संख्या में उपस्थित होना इस बात का संकेत है कि कैसे हम टीम इंडिया की तरह अपने देश को टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, टीबी से मुक्ति का ये मिशन भले भारत में हो या किसी भी देश में, फ्रंटलाइन टीबी फिजिशियंस और वर्कर्स की बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही हर वो व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित होने के बाद रेगुलर दवा लेता है, अपना इलाज कराता है और इस बीमारी को हरा कर ही दम लेता है, वो भी प्रशंसा का पात्र है। अभी बिहार के हमारे एक साथी ने जिंदगी कैसे जीत लेती है इसका बयान किया। मैं कभी इन टीबी के मरीजों से जब मिला हूं तो पहले तो छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं, उनको लगता है मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। बाद में पता चल जाता है
तो मान लेते हैं कि बस अब एंड ऑफ द रोड, अब आगे कुछ नहीं बचा है। मैं एक बार ऐसे ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपको टीवी देखने की आदत है? बोले हाँ है। डेली देखते हैं? हाँ बोले डेली देखते हैं। छुट्टी के दिन ज्यादा देखते हैं, वैसे भी 1-8 घंटा तो टीवी के सामने चला जाता है। मैंने कहा टीवी देखने की आदत छूट सकती है क्या? तो बोले बहुत मुश्किल है। मैंने कहा टीवी से छुटकारा मुश्किल है, टीवी से छुटकारा सरल है। एक बार मन में ठान लो, आप उससे मुक्त हो सकते हो। और टीबी का मरीज अपनी इच्छा शक्ति से जिस तरह इस बीमारी पर विजय प्राप्त करता है, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि मरीजों की इच्छा शक्ति और अपने पैशनेट टीबी वर्कर्स के सहयोग से भारत के साथ ही दुनिया का हर देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। और मेरा अनुभव है कि जिसने ये जीत प्राप्त की है, समाज के हर तबके के लोग, वे अगर आकर के लोगों के साथ बात करते हैं तो उसमें सरलता बहुत बढ़ जाती है। उसका अपना जीवन का अनुभव दूसरे को प्रेरणा देता है। कितना ही बड़ा व्यक्ति कितनी ही बात बता दे, कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी कितने ही बड़े मजेदार संदेश दे दे, लेकिन जो इस जिंदगी को जी करके निकला है, जीत करके आया है, उसकी बात सामान्य गरीब पेशेंट भी आसानी से समझता है, स्वीकार कर लेता है। और इसलिए हमारे अप्रोच में, और इसी का कारण है कि आज ऐसे एक व्यक्ति का भी यहां भाषण हुआ कि जिसके कारण एक विश्वास पैदा हो कि मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है। यहां हेल्थ सेक्टर के जो लोग भारत से हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर अपना बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपके लिए टीबी फ्री इंडिया का लक्ष्य 2030 नहीं है, आपके लिए 2025 है। सही रणनीति के साथ सही तरीके से ग्राउंड पर हम नीतियों को लागू करते चलेंगे तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर, स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक करके टीबी की जांच के तरीकों, टीबी के इलाज यानी मल्टी सेक्टरल एंगेजमेंट के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार और प्रशासन के हर स्तर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, सभी को अपने अपने स्तर पर टीबी फ्री गांव, टीबी फ्री पंचायत, टीबी फ्री जिला या टीबी फ्री राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी होगी। फ्रेंड, भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कुछ लोगों को मुश्किल भले लग रहा हो, लेकिन ये असंभव नहीं है। पिछले 4 साल से जिस तरह हमारी सरकार नई अप्रोच के साथ काम कर रही है, उससे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा इस टीम पर भरोसा है। भाई और बहनों, हम समस्याओं को, चुनौतियों को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब होलिस्टिक तरीके से इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया जाता है तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। मैं आलोचना में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको अपने यहां के इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। भारत में इम्यूनाइजेशन 30-35 साल से चल रहा है। बावजूद इसके 2014 तक हम संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए थे। जिस रफ्तार से इम्यूनाइजेशन का दायरा बढ़ रहा था, अगर वैसे ही चलता रहता
तो भारत को संपूर्ण कवरेज तक पहुंचने में और 40 साल लग जाते हैं। साथियों, पहले हमारा इम्यूनाइजेशन कवरेज सिर्फ 1% की रफ्तार से बढ़ रहा था। सिर्फ 3-3.5 साल में अब ये 6% से प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है और वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 1 वर्ष में हम 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। दूसरे देशों से आए हुए हमारे अतिथि सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। साथियों, मैं जब नई अप्रोच की बात करता हूं तो उसके पीछे यही वजह है। हमने पहले देश के उन जिलों को, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जो बरसों से चल रहे इम्यूनाइजेशन कवरेज से बाहर थे या जहां टीकाकरण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी। इन क्षेत्रों को टारगेट करके हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया, वैक्सीनेशन के लिए नई दवाइयां जोड़ी और ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना शुरू किया। आज इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। साथियों, ऐसे ही नई अप्रोच के साथ हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का जो दायरा लगभग 40% था, अब वो बढ़कर लगभग 80% तक पहुंच गया है। इतने कम समय में हमने 2 गुनी कवरेज हासिल की है। हम बहुत तेजी के साथ अक्टूबर 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया की तरफ उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं ये 2 उदाहरण आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं हर देश के बीच इस बात पर बल देना चाहता हूं कि बड़े और मुश्किल लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। हां, उसके लिए पहली आवश्यकता है कि कोई लक्ष्य तो तय किया जाए। जब लक्ष्य तय नहीं होगा तो फिर न रफ्तार होगी, न दिशा रहेगी और न ही आप मंजिल को कभी ढूंढ पाएंगे, मंजिल को कभी पहुंच पाएंगे। साथियों, इसी हौसले के साथ, इसी तरह तय लक्ष्य और तय रणनीति पर चलते हुए भारत भी 2025 तक टीबी मुक्त होने के अपने संकल्प को पूरा करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। साथियों, आप सभी हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं यहां। ये भी भली भांति समझते हैं कि कोई भी बीमारी को खत्म करने के लिए मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। टीबी के विषय में मैंने दवाइयां, इलाज की मॉनिटरिंग, रिसर्च, पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक सहायता जैसे अनेक इंटरवेंशन के बारे में आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही भारत में कुछ और भी चीजें हो रही हैं जो टीबी के प्रभाव को, इस बीमारी को कम करने में बहुत सहायक है। इनमें से एक स्वच्छ भारत मिशन है, जिसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बताया है। इसी तरह भारत सरकार की उज्ज्वला योजना भी टीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम कर रही है। घर में एलपीजी गैस कनेक्शन आने के बाद महिलाएं, उनके बच्चे, उनका परिवार लकड़ी के धुएं से मुक्त हो रहे हैं और साथ ही साथ खुद पर टीबी का खतरा भी कम कर रहे हैं। क्लीन कुकिंग, इस मूवमेंट को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 4 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पोषण मिशन भी शुरू किया है। इस मिशन का मकसद
सिर्फ लोगों को पौष्टिक भोजन देना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य वो इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कुपोषण की संभावना कम से कम हो। साथियों, इस साल के बजट में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी शुरू करने का ऐलान किया है। ये योजना है आयुष्मान भारत। हमारे मंत्री जी ने उसका विस्तार से बताया है। लॉन्ग लिव इंडिया, इसके माध्यम से हमारी सरकार देश में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सिस्टम को और मजबूत करने का काम करेगी। सरकार द्वारा देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। ये वेलनेस सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर का काम कर रहेंगे, जहां पर डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी होंगी और लोगों को सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 10 करोड़ गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष का हेल्थ एश्योरेंस भी दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा भारतीय दर्शन और भारतीय पुरातन विज्ञान स्वास्थ्य को लेकर हमेशा बहुत स्पष्ट रहा है। हमारे यहां कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी मे ऑल बिकम हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस, मे नो वन सफर। इसी दर्शन की वजह से भारत भूमि पर आयुर्वेद और योग जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों का जन्म हुआ, जो आज पूरे विश्व में विस्तार हो रहा है। सैकड़ों वर्षों से ये भारतीय जनमानस में रचा बसा हुआ है कि क्यूरेटिव, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इन तरीकों से को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। हमारी सरकार भी पुरातन भारतीय पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को साथ लेकर के चल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से आज ये भी आग्रह करूंगा कि टीबी के निदान में आयुर्वेद के योगदान को लेकर रिसर्च का दायरा बढ़ाया जाए और उसके जो भी नतीजे आए वो हमारे साथी देशों से भी साझा किया जाए। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर हम जब काम कर रहे तब क्षेत्रीय सीमाओं में ये हमारा मंत्र बंधा हुआ नहीं है। टीबी फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए भारत हर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सहर्ष तैयार है। टीबी से लड़ाई में जिन भी देशों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स, कमोडिटीज और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होगी, हम पूरी तत्परता के साथ उस देश का साथ देंगे। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी योजना सफल हो या असफल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लास्ट नीडी पर्सन को कितना लाभ हो रहा है। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारी योजनाएं उस लास्ट नीडी पर्सन तक पहुंचे और उसकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएं। आज इस अवसर पर मैं हर व्यक्ति, हर सरकार, हर संस्था, सिविल सोसाइटी से जुड़े हर प्रतिनिधि से भी ये संकल्प लेने के लिए आग्रह करता हूं कि वो टीबी के उस लास्ट पर्सन तक पहुंचने में, टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Honorable Prime Minister giving us a most wonderful inaugural address. So privileged and honored to have him here with us. So with that, ladies and gentlemen, we come to the end of the inaugural session of the End Tuberculosis Summit. I request you to kindly remain in your places till the Honorable Prime Minister and dignitaries have left the stage, please. And after that, I shall be making the announcements for tea. The VVIPs who have red lanyards are to proceed to the lounge. So kindly do go there and then wait for the next.